ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली है. Good evening, everyone. This is Muskan Qureshi, and I warmly welcome you all to the eighth episode of Social Talks. Social Talks is a platform where we address and discuss about a diverse number of topics. One such topic that we have chosen for today is Ganga Yamuni Tehzeeb. Originated around the Doab region of Ganga and Yamuna rivers in India during the medieval period, this tehzeeb fosters the joint contribution of Hindus and Muslims in building a society which is based on the values of fraternity, brotherhood, celebration of arts and festivals, and a confluence of intellectual works, cuisine, music, literature, and philosophies. The term Ganga Yamuni also refers to the mixing of two different religions, just like the confluence of River Ganga and River Yamuna, with the purpose of communal harmony. This culture traces its origin back to central India, like Lucknow, Varanasi, Kanpur, Allahabad, and Ayodhya. The Nawabs of Awadh were the founding members of this culture, thereby making central India rich in diversity and traditions. This not only maintained harmony in society but also contributed to the growth of trade and commerce by opening markets internationally around the world. This tehzeeb mainly talks about the concept of tolerance, loving and respecting people of all religions. This is a culture where there is no space for hatred or anguish, a culture that has nothing to take but only to offer, a culture where we greet each other by shaking hands, a culture where we give hugs to celebrate festivals, and a culture which equally values the salutations of Namaskar and Assalamu alaikum. Believing in this culture of Ganga Yamuni Tehzeeb, the very first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji, in one of his hymns of Gurbani says, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे. This translates to, at first Allah created light and by his creative power he created the other mortal beings. From one light the entire universe welled up. So how is one bad and one good? Before we move on, we have a guest today joining us on this session to throw some light on the same topic. He is a person who has been with us for a very long time and has enlightened our minds with wisdom and critical thinking. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Neeraj Kumar. Welcome aboard, sir. We're grateful to have you here. थैंक यू मुस्कान एंड थैंक यू द एंटायर टीम. लंबे समय बाद वापस एटम टू बाइट के साथ और इतने प्यारे टॉपिक के साथ. सो आई कैन सिंपली से इट्स अ वंडरफुल वर्क एंड दिस इज द मोस्ट वंडरफul topic of all the wonders the team has already created. Thank you so much. So, as we are all gathered today here to talk about Ganga Yamuni Tehzeeb, we would like you to share some thoughts on this topic. So, sir, what is this Ganga Yamuni Tehzeeb according to you? आधे से ज़्यादा बात तो मुस्कान बेटा आपने कह दी है अपने इंट्रोडक्शन में कि आज के सैकड़ों साल पहले अवध के नवाब ने जिस भारतवर्ष और जिस साम्राज्य की स्थापना की, उन्होंने देखा कि भाई हर कौम के लोग जब आते हैं और अपना बेस्ट देते हैं और जब उन सबको लेके हमारा एक साम्राज्य खड़ा होता है तो सिर्फ वो सीमाएं ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को साथ लेके आगे बढ़ता है. और ऐसा साम्राज्य खुशहाली का प्रतीक होता है, भाईचारे का प्रतीक होता है. और जिस भारतवर्ष की बात इतिहास में होती आई है और जिसके लिए पता नहीं कितने सौ सालों से हजारों सालों से लोग लड़ते झगड़ते आए हैं, ये गंगा यमुनी तहजीब इसी की वजह से शायद ऐसा है कि यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे बीच में न कौमी वैमनस्यता है, न कोई जातीय नफरत है, कुछ भी नहीं है. सब लोग बड़े मिलजुल के प्यार से रहते थे और इसको प्रमोट किया गया. अलग अलग समय पे अलग अलग नवाबों ने, अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से विभिन्न समुदाय के लोगों को एकजुट किया, सबका बेहतर लेके एक बेहतरीन साम्राज्य को बनाया. और जो भारत बना और सैकड़ों सालों में उनके बाद मुगलों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद तो जाने कितने लोग आए, लेकिन हमारा भारतवर्ष वही प्यारा देश बना रहा. तो हमारी गंगा यमुनी तहजीब हमें उस भारत की ओर ले जाती है
जहाँ इंसान सिर्फ इंसान है, जहाँ इंसान सिर्फ खुदा का बंदा है, वो नमस्कार करे या सलाम अस्सलाम वालेकुम बोले, या जीसस क्राइस्ट के नाम पे कैरल्स पढ़े, या कुरान शरीफ की आयतें पढ़े, या मंदिर में श्लोक पढ़े। वो जब बाहर निकल के एक समाज के रूप में आते थे, बड़े प्यार से रहते थे। सो यस, डेवलप होता है हमारे इन दो नदियों नदियों के संगम के बीच में। एक यमुना है जिसके उत्तर में हमारी धरती की खुशहाली है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जिसको दोआब क्षेत्र कहते हैं हम लोग। और दूसरी तरफ हमारा अवध, जो गंगा का तराई क्षेत्र है, जहाँ पे काफ़ी लोग बसते चले गए, कुछ अपने कौशल की वजह से, कुछ अपने ज्ञान की वजह से, कुछ अपनी कलाकृतियों की वजह से, अलग अलग उद्देश्यों का बेस्ट लेके जब लोग आए। और इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ये उत्तर प्रांत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये गंगा तराई वाला हिस्सा है, यहाँ की आबादी बड़ी सघन है और यहाँ पे करीब करीब हर समुदाय के लोग रहते हैं। और ये रहते ऐसे नहीं हैं, इन्होंने धीरे-धीरे आके अपने आप को यहाँ बसाया, और इसको बसाने में जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, और जिस उत्तर और पूरब भारत की बात हम लोग करते हैं, जिससे मिलके हमारा भारतवर्ष इतना सुदृढ़ और सुसंस्कृत होता है। शॉर्ट में कहा जाए तो हमारी गंगा यमुनी तहज़ीब इन्हीं दो कौमों का एक प्यारा सा बनता हुआ देश है, जो शायद कहीं न कहीं आज किसी कारण से बिखरता जा रहा है। टूटना तो संभव नहीं कहेंगे, लेकिन बिखरता जा रहा है। So it is a book that tells us that how this India, which we are so proud of, was the result of not one, but in fact all the different religions, castes, communities. Everybody's best, everybody's most spiritual elements came together. Then we found this spiritual nation. इसकी चर्चा हमारे हर धर्म ने की है अपने अपने हिसाब से, चाहे वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, सूर हो, ब्रज की भाषा हो, अवधी भाषा हो, हिंदी उर्दू तो काफ़ी बाद में आती है। जब बात देश की आई तो देश के प्यारे प्यारे लोगों की आई, जिन्होंने कभी भी एक दूसरे से किसी का धर्म नहीं पूछा, एक दूसरे का हाथ बटाते चले गए, उन्हें गले लगाते चले गए, और एक वो देश बनाया जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र रही, और आज भी है। और शायद यदि हम थोड़ा इसको फिर से ठीक करें, सोचने की कोशिश करें, तो आज भी हमारा भारत दुनिया का सबसे प्यारा देश है। हमारे दो नदियों का संगम, दो कौमों का संगम, इसलिए दो कौमों का संगम कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव मिलकर ये पृथ्वी बनी है। किसी भी एक कौम के वश की बात नहीं है, किसी भी एक समुदाय के वश की बात नहीं है। एक अच्छे देश, एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे समाज की स्थापना करना। सो मेरे नज़रिए से गंगा यमुनी तहज़ीब दो नदियों का ही नहीं, दो कौमों का ही नहीं, एक संपूर्ण समागम है हर प्रकार के लोगों का, जिसकी वजह से सबकी कुछ खूबसूरती लेके एक अनुपम खूबसूरत देश बनता है इसका। सर, क्या इस कल्चर को स्प्रेड करने में पोएट्स और फिलोसोफर्स का कोई रोल था? मैंने पहले भी कहा कि इस कल्चर को स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी हमारी पोइट्री है, जितनी भी हमारी फिलॉसफी, जितना भी लिटरेचर है, इट इज़ जस्ट द मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी। साहित्य का ऐसा कोई प्रभाव नहीं जहाँ इन दो कौमी एकता, दोनों कौमी मोहब्बत की बात नहीं की गई। किसी भी तरह के लोगों को उठा के देखिए, हम यदि खुशवंत सिंह की दिल्ली देखते हैं तो उस दिल्ली ने जो देखा वो सब उन्होंने लिखा। उन्होंने भी बताया कि कैसे इस एक दिल्ली ने, दिल्ली इसलिए कहना जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष का केंद्र है वो, उन्होंने भी बात की। थोड़ा हम प्राक इतिहास में चलते हैं, सॉरी मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं, तो वहां तो जितने भी कवि आए, जब जैसे हमारे सनातन धर्म की बात करते हैं, 9 दर्शनों का समागम था ये, जिसमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक धर्मपंथ हुआ करते थे। और वहां से जब निकल के लोग कबीर, रहीम, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर, तुलसी, ऐसे पता नहीं कितने लोग आए उस काल में, जिन्होंने कभी ये बात ही नहीं की कि अल्लाह अलग है और ईश्वर अलग है। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मंदिर जाना अलग है और मस्जिद जाना अलग है। जैसे एक चिड़िया किसी डाल पे बैठती है, चिड़िया किसी गुंबद पे बैठती है, तो उसे ये पता नहीं होता कि वो मंदिर का गुंबद है या वहाँ से मस्जिद की अजान उठने वाली है।
उसी तरह से इंसानों के लिए उसी रास्ते को चिड़िया के रूपक से अम, सारे लोगों ने बताया है। किसी एक का नाम लेना बहुत संक्षेप में नाइंसाफी होगी। जितने भी लोग आए, जितने भी हमारे उस काल में दर्शन आए, चारवाक के को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी हमारे सगुण और निर्गुण ब्रह्म आए सनातन धर्म में, इवन हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हैं, वो जब आए तो हमारे इस विश्व का हाल बहुत बुरा था। हमारे यहाँ भारत में सती प्रथा जारी थी, उसके बाद यूरोप में औरतों को जलाया जा रहा था, बहुत सारा उथल पुथल था। तो वो उन्होंने एक प्रेम का संदेश दिया। और जहाँ तक मुझे मालूम है इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही प्रेम होता है। ईमान से ईमान के मुकम्मल होने से मुसलमान बनता है। ईमान मतलब एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो धर्म है वही उसका ईमान है। तो हमारे जितने भी साहित्य लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, वहाँ कहीं भी धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे दो मनुष्यों में, मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है, किसी भी दो जीवों में भेद करने की बात नहीं की गई है। इसलिए ये कहना कि किसी पर्टिकुलर साहित्य ने इसको प्रोपोगेट किया, इसको प्रमोट किया, ये गलत होगा। जिसने भी इस मर्म को समझा, जो भी साहित्यकार या कवि हमारे हुए, और एक साहित्यकार, कवि और दार्शनिक वही होगा जो इस छोटी सी बात को समझ पाए कि हम जब एक साथ हैं तो हमारे इस बाजार में बैठा इंसान किसी जाति और कौम का नहीं, वो बस एक इंसान है, अपनी अपनी जरूरतों और एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम बांटने के लिए बैठा हुआ एक महज मामूली सा इंसान है। जिसने ये समझा वही साहित्यकार है। और जिसने ये समझ लिया और जब लिखना शुरू किया, तो आप किसी भी काल के किसी भी साहित्यकार को उठाइए, शहादत अली मंटो को उठाइए, मुक्तिबोध को उठाइए, महर्षि शरण गुप्त को उठाइए, हरिवंश राय बच्चन को उठाइए, दिनकर को उठाइए, गालिब को उठाइए, मीर को उठाइए, ज़ौक़ को उठाइए, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका नाम हम लेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने इस मिली-जुली सभ्यता को प्यार से आगे सींचने का और आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, और उनके लिए उन्होंने एक अच्छा संदेश नहीं छोड़ा। So this literature is full, like this book itself, गंगा यमुनी तहजीब। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर यंगस्टर को ये किताब पढ़नी चाहिए, और ये इतनी प्यारी किताब है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे इस तहजीब का विकास हुआ, कैसे चीज़ें बिखरने लगी, और आज कहाँ जाके ये रुकी है, जहाँ से हमें इसे ठीक करने और वापस लाने की जरूरत है। So, yes, the philosophy itself is the mirror of the society, and as I said, our society is already full of love and harmony among the people. We never knew. ये तो बहुत बाद में लोगों ने जानना शायद शुरू किया। पहले लोगों को नहीं मालूम था ईद और दिवाली का फर्क, लोगों को नहीं मालूम था टोपी और जनेऊ का फर्क, लोगों को नहीं पता था खान और मिश्रा का फर्क, लोगों को मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं पता था। ये फर्क कहाँ से आया, क्यों आया, ये सोचने का विषय है, और निश्चित रूप से it needs a lot of research and introspection from everybody of us. Yes, Muskan. सर, आपका अपना कोई ऐसा पर्सनल एनकाउंटर जो इस तहजीब के साथ था? मतलब आप इस कल्चर से कैसे इंट्रोड्यूस हो गए? मैं इस कल्चर से कैसे जुड़ा, सबसे बड़ा सवाल तो ये किस कल्चर की बात कर रहे हैं। और जब हम लोग एक भारतवर्ष की बात करते हैं, उस भारत की बात करते हैं जो किसी भी कौम के बढ़ने और अलग होने से पहले से था, और शायद काफ़ी बात तक रहेगा, तो यहाँ ऐसा कुछ भेद तो था ही नहीं। एंड कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ डिफेंस पर्सनल, हमारे लिए देश ही था, समाज ही था, और कभी ये समझ में आया नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये अलग अलग कौमों के विषय में, अलग अलग जातियों के विषय में बहुत बाद में पता चला। व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, टिल माय क्लास स्कूल लाइफ, आई नेवर न्यू दैट देयर इज समथिंग लाइक रिलीजन, देयर इज समथिंग लाइक कास्ट। हम तो यही जानते थे कि हर इंसान में उसके भगवान ने, उसके खुदा ने उसको एक ऐसी काबिलियत दी है जो उस दुनिया का बेस्ट है। ये बल्कि मैं हर बच्चों को बोलता हूँ अपने क्लास में, आप लोगों से भी कहता हूँ, एवरी सोल इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न विद वन सच थिंग विच इज द बेस्ट इन हिम और हर। बस जरूरत होती है किसी भी समाज को उस सारे बेस्ट को मिला के बेस्ट सोसाइटी को आगे खड़ा करने की। So for me, it was like that, quite natural. My father's friends, all different pilot officers, they were from different communities. उनमें क्रिश्चियंस भी थे, तमिल्स भी थे,
मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, सब साथ में रहते थे, खाते थे। दिवाली की मिठाइयाँ हो या ईद की सेवइयाँ हो, एक साथ बढ़ती थी, एक ही साथ बनता था। वो टेबल कभी अलग हुआ नहीं, वो बर्तन कभी अलग हुआ नहीं। होली पे भी लोगों ने गले लगाया, मैंने भी अपने दोस्तों को बहुत प्यार से गले लगाया। और ईद पे भी मस्जिद में गए, उनके साथ नमाज में शरीक हुए। भले नहीं समझ में आई मुझे बातें, लेकिन उनके साथ शरीक होना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खुशियाँ बाँटना, ये सब बिल्कुल स्वाभाविक था, नेचुरल था। एंड इट्स द सेम नेचुरल फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न इन दिस वर्ल्ड। मे बी उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी, उनका कॉलोनी, उनका स्टेट पॉलिटिक्स, कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कारण होता है जहाँ से ये नफ़रत पैदा होती है। मोहब्बत तो स्वाभाविक रूप से आती है। और हमारी ये गंगा यमुनी तहज़ीब, जिसको संगम कहते हैं, सरस्वती तो नहीं है, गंगा यमुना का संगम जब वो होता है तो स्वाभाविक रूप से होता है। उसके लिए नदियों को मोड़ा नहीं जाता, वो तो खुद ही जाके मिल जाती है और अंत में सागर से जाके मिल जाती है। उसी तरह से हमारी ये दो कौमें हैं जो एक दूसरे से मिलके ही आगे बढ़ती हैं और जाके फिर उसी खुदा से मिल जाती हैं जहाँ से हम निकल के आए थे। ये तो छोटी सी बात थी, और ये छोटी सी बात समझने के लिए कुछ बहुत मेहनत करने की ज़रूरत किसी बच्चे को नहीं होती है। बस समाज को ज़रूरत है उसके अंदर वो जहर और उसके अंदर वो नफ़रत का बीज ना बोए। ये तहज़ीब जैसे हमारी ये नदियाँ प्राकृतिक रूप से आई, मिली, आगे बढ़ीं और जाके सागर में खो गईं, इसी तरह से हमारी ये 2 कौमें भी इस देश में हमेशा से एक साथ रहीं, पली-बढ़ीं, एक-दूसरे का सहयोग किया, अपना सर्वोत्तम दिया और अंत में होके इस राष्ट्र के नाम पे शहीद होती चली गईं। इस मिट्टी में जो बहने वाला खून था, उसके ऊपर किसी कौम का नाम नहीं लिखा हुआ था। जिस भारत और जिस आज़ाद देश की हम लोग आज बात करते हैं, उसके लिए लड़ने वाले सिपाहियों में किसी कौम, किसी जाति का नाम नहीं था। ये लड़ने वाले दोनों अलग-अलग कौमों से एक राष्ट्र के लिए लड़ने वाले लोग थे। जैसे 2 नदियाँ मिलकर एक मैदान, एक समाज की स्थापना करती हैं, हमारे इन दोनों कौमों ने एक राष्ट्र को बनाया। और ये बातें मैंने बचपन में बहुत स्वाभाविक रूप से देखी, कॉलेज लाइफ में भी देखा मैंने, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मेरे कुछ फ्रेंड्स जेएनयू में हैं, वहाँ तो धर्म की बात ही नहीं कर सकते हम लोग, वहाँ सिर्फ इंसानियत की बात होती है, मुल्क की बात होती है, खुदा की बात होती है, उनके बंदों की बात होती है, और वो सब एक है। चोट लगने पे दर्द सबको एक जैसा होता है, एक दूसरे से मिल के खुशी सबको एक जैसी होती है, गम एक जैसा होता है। इंसान सिर्फ इंसान है, उसके नाम से उसकी पहचान बन सकती है, उससे नदियों का पानी बदल नहीं सकता। रंग बदल सकता है पर पानी पानी ही होता है। और ये छोटी बात मेरी मुझसे पूछो, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे लगता है कि ये सबसे simplest of the lessons for everyone. And why it is so difficult for the present time when we hear the news like whatever happening in our country right now, तो शॉकिंग लगता है कि इन 20 सालों में ऐसा क्या होता चला गया, ये चीज़ें बिखरती जा रही हैं। So yes, like for every child, love, brotherhood, fraternity, harmony, this was all natural for me, for everyone else like us. Namaskar. So I have the last question for you कि आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारी आज के जनरेशन के लिए इस टॉपिक पर? मैसेज तो बड़ा सिंपल सा है, ये टॉपिक ही इतना प्यारा है। मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले तो इस किताब को पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक पूरा पॉडकास्टिंग किया जाए, इस पूरे बुक के ऊपर, इसके अलग-अलग एपिसोड्स के ऊपर, और आने वाले टाइम पे एटम टू बाइट की मदद से हम लोग यदि संभव हो पाया तो इस पूरी किताब को पॉडकास्टिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँगे। तो आप वो एक अच्छा, जो छूट गया है, जो अच्छी बातें छूट गई हैं, बस उसको वापस लाने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग किसी की नफ़रत भरी बातों से एक दूसरे से दूर होते चले गए, गलत लिटरेचर, चाहे पॉलिटिकल ड्रामा हो या सोशल मेलोड्रामा हो या रिलीजियस रिचुअल्स हो, किसी भी नाम पे जैसे हम लोगों ने एक दूसरे से अपने आप को दूर किया, वापस लाने का भी रास्ता उतना ही सहज है। बस ज़रूरत है सही लोगों को सुनने की, सही चीज़ों को पढ़ने की और चीज़ों को सही नज़रिए से देखने की। तो इन यंगस्टर्स को मैं यही बोलूँगा, हम लोगों ने सब कुछ कमा लिया। हमारा वो देश था जहाँ किसी भी जलसे में जब खाना बनता था तो हर घर से आटा जाता था, उसमें उनकी जाति, उनका धर्म आड़े नहीं आता था। शायद आज हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर्स और
मैकडोनल्ड्स वाले एज में आ गए हैं, हम लोग आइसोलेटेड और न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ते चले गए हैं। लेकिन एक बार जरूरत है ढूंढने की कि इतने के बावजूद यदि हम लोग आज खुश नहीं हैं, हमारा देश वहां नहीं है जहां हम इसे ले जाना चाहते थे, तो उसका कारण क्या है? 120 करोड़ की आबादी वाला देश, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, आजकल तो 140 करोड़ की बात होती है, कुछ लोग तो 300-400 करोड़ भी बोल जाते हैं। मतलब इतना विशाल देश, इतना सशक्त देश जिसके पास सब कुछ है, हमने हर चीज अपने लिए इकट्ठा कर ली है, फिर भी परेशान है। तो जरूरत है इंट्रोस्पेक्ट करने की, जरूरत है उस इंसान को गले लगाने की जिसे किसी कारण से हमने दुत्कार दिया है, चाहे वो कोई भी हो। 4000 कुछ कम्युनिटीज हैं हमारे इस कंट्री में। जब हम ये कम्युनल डिविजन्स को हटा के, चाहे वो किसी भी बेसिस पे है, जब हम अपने आप को सिर्फ एक इंसान की हैसियत से लेके सामने वाले को एक इंसान की हैसियत से मिलेंगे, उसकी और कोई पहचान नहीं होगी, तब जाके इंसानों का एक देश बनेगा। और जो चीज़ें जिसकी वजह से आज पश्चिम के लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, उसको भरने की ज़रूरत है। ये वो देश है जहाँ मुहर्रम के ताज़िए बनाने वाले शायद मंदिर से निकल के पूजा करके आए हों, जहाँ छठ का सूप बनाने वाले मस्जिद से नमाज पढ़ के आए हों, जहाँ किसी भी त्योहार में उसका सहयोग करने के लिए जब घाट का निर्माण होता है, उसकी सफाई होती है, तो उसको साफ करने वाले वो अपनी कम्युनिटी छोड़ के सब साथ देते हैं। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, घोड़ा चलाने वाले सारे मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, अमरनाथ जाते हैं सब मुस्लिम हैं, वो सब हमें माँ के दरबार पे छोड़ के आते हैं। उसी तरह से जब मैं गरीब नवाज के दरबार में जाता हूँ, जमा मस्जिद जाता हूँ, हेल्प करने वाले सारे लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो चीजें बहुत प्यारी हैं। जो चीजें हमारे अंदर नकारात्मक विचार भरती है, उससे अपने आप को दूर ले जाने की जरूरत है। राजनीतिक लोगों से अपने आप को दूर ले जाने की जरूरत है, और अपने आप को अपने पड़ोस के इंसान के साथ रख के एक आईने में देखने की जरूरत है। और जैसा मैंने पहले बोला मुस्कान, ये बहुत आसान है, बस जो हमारे बीच की खाइयां हैं इसको पाटने की जरूरत है। और इसको पाटने के लिए भरा पड़ा है हमारा भारतीय साहित्य। आप कहीं से कुछ भी उठा लीजिए, भगवत गीता उठा लीजिए, कुरान शरीफ उठा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब उठा लीजिए, या हमारा कोई भी समकालीन साहित्य उठा लीजिए, और जब कुछ नजर नहीं आए तो इस गंगा यमुनी तहजीब को उठा लीजिए। हर पन्ने में हमारा मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देश मिलेगा। जस्ट गो बैक टू दैट लिटरेचर वी हैव लॉस्ट। सो सिंपल। All right, so that brings us to the end of our today's discussion. It was a delightful session with you, sir, और I'm sure कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। So एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाए कि कहाँ वो भटक रहे हैं और उन्हें क्या करने की जरूरत है। तो एक छोटी सी कोशिश हमारी कामयाब होगी, लोग अपने सोचने का नजरिया बदल सकें, तो शायद हमारी छोटी सी बातचीत सफल मानी जाएगी। और इस किताब के जो हमारे गूढ़ तत्व हैं, जो हमारे बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आने वाले सीरीज में हम लोग और बात करेंगे कि कैसे कला, साहित्य और जितना भी हमारा आध्यात्मिक से लेके सामाजिक पटल पे बनने वाला दृश्य था, वो कैसे बना, क्यों बना, और जिसको हम लोग इतना प्यारा कहते हैं, उस प्यारे चीज़ों में उन प्यारे चीज़ों में कितने लोगों का प्यार शामिल है। So we will talk about this love in entirety. But for the first introductory things, I will request all the youngsters through you that please check it out. Nothing is left in the hatred. No religion teaches us hatred. God teaches us only love. And the world is already full of love. Just we have to stop ourselves from being full of hatred. That's all from my side. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था हमारा आज का। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।